مل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، سورۃ اعراف کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ 3 قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو سب سے آخر میں قرآن میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد قرآن میں کوئی بھی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہو گیا دین مکمل، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہاری طرف جو نعمتیں بھیجی تھیں وہ آج تمام ہو گئیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کی دعویٰ جو کر رہے تھے، میں آج اسلام سے راضی ہوا ہوں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ میرے حبیب تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اب لوگ کہا، کافر نہیں کہا۔ میں بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ خطرہ کس سے تھا رسول کو اس اعلان کے بعد، اس وجہ سے اللہ نے مذہب نہیں بتایا، اللہ نے مذہب نہیں بتایا کہ نبی کو خطرہ مشرکوں سے ہوگا، نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ کافرین سے خطرہ ہوگا، یہ بھی نہیں کہا کہ منافقین سے خطرہ ہوگا۔ اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے خطرہ ہے۔ اب وہ لوگ چاہے منافق ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے مسلمان ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں؟ تو یہ اعلان ایسا ہونے والا ہے، اور اس اعلان کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے اس حبیب جسے کبھی کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے طیب و طاہر رسول، کبھی کہا یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے سید و سردار رسول، اس عظیم ہستی کو آج عہدے سے پکارا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرے حبیب آج کرنی ہے تبلیغ، میرے رسول آج کرنی ہے تبلیغ۔ اچھا صرف یہ کہہ دیتا تو بھی بات چل جاتی کہ اللہ نے کہا کہ نبی آج آپ کو تبلیغ کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جو قرآن نے جملہ کہا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ قرآن میں 2 مقامات پر اللہ نے نبی کو تحدید کی ہے، تھوڑا سا اگر ذہن ملائیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ 2 ایسے مقام ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو، توجہ میری طرف ہو، اللہ نے اپنے حبیب کو 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپنے حبیب کو تحدید کی ہے۔ تحدید کو ہم اردو میں ڈانٹنا کہتے ہیں، اور سندھی میں دڑکو کہتے ہیں، سمجھو پہ اپنی گال؟ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو تحدید فرمائی ہے۔ پہلا مقام سورۃ انفال، اللہ کہتا ہے بسم اللہ، توجہ میری طرف ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ترکن الی الذین ظلموا فتمسکم النار، میرے حبیب جو جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے ساتھ رکنیت نہ رکھنا۔ لا ترکن الی الذین ظلموا، ہوگا کیا؟ فتمسکم النار، نار کہتے ہیں آگ کو، آگے کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں سردار کے لیے وہ کہوں جو خدا نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا،
ठीक है। फतमस्सकुमुन्नार, अगर कोई और होता तो तर्जुमा ये होता कि तुम्हें आग में डाला जाएगा। बहुत बड़ी तहदीद है उसके लिए जिसे सैयद और सरदार ताहा, मुजम्मिल, मुद्दस्सिर, जो सोए तो आयतें नाजिल हो, जो चले तो आयतें नाजिल हो, जो बोले तो आयतें नाजिल हो, जो किसी को रोके तो आयतें नाजिल हो, किसी को दे दे तो आयतें नाजिल हो। उस खुदा, उस रसूल के लिए अल्लाह ने क्या कहा? ला तरक्कन इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार। मेरे हबीब, जिन्होंने जुल्म किए हैं, जुल्म क्या है? गरीब को थप्पड़ मारना। कुरान से पूछते हैं, घबरा तो नहीं गए ना? ये जुल्म है क्या? चलो कुरान से पूछते। अल्फाज है कुरान के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम। जो शिर्क है सबसे बड़ा जुल्म है, यानी जो मुशरिक है वो जालिम है। अब आयत का तर्जुमा करो। अल्लाह कहना ये चाहता है, खबरदार जो किसी भी जमाने में मुशरिक रहा हो उससे रुकनियत न रखना। मैं अब इससे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अगर आज आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं समझता हूं मेरा आना मौला ने कबूल किया। क्या कहा? ला तरक्कन इलल्लज़ीन ज़लमू, खबरदार मुशरिकों से रुकनियत न रखना। अब आप कहेंगे रुकनियत क्या है? ये कोई फार्म भरवाना है क्या? अंजुमन है क्या जिसकी रुकनियत होती है? नहीं। और रुकनो सलासतुन, रुकन की 3 मानाएं हैं। कर्ज लेना, बाबा चाक कर सुनोगे तो लुत्फ आएगा। कर्ज लेना, पनाह लेना, मोहब्बत करना। कर्ज लेना, पनाह लेना, मोहब्बत करना। मेरे हबीब, खबरदार जो मुशरिक रहा हो ना उससे कर्ज लेना, ना उसके पास पनाह लेना। अगर आज भी अबू तालिब समझ में ना आया, फतमस्सकुमुन्नार, मुशरिक से न कर्ज लेना, न पनाह लेना, न मोहब्बत करना। सलाम है ना अबू तालिब की जात पर। अल्लाह के हबीब ने अबू तालिब से कर्जा भी लिया, पनाह भी ली, मोहब्बत भी की। या तो आयत को निकालो या मानो कि अबू तालिब मुशरिक नहीं था। तादीद की बात आ गई है तो थोड़ा सा हल। अबू तालिब को तो अल्लाह के नबी ने कब्र में लिटाने से पहले, अभी जब आखिरी सांसें थी तो कान में कहा था, गौर करना, कान में कहा था कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। लेकिन अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, बुढ़ी न तो मरी। कान वाली बात तो समझ में आ गई, मैदान वाली बात तो समझ में नहीं आई। कान वाली बातें याद हैं, खदीर के मैदान वाली बातें याद नहीं है। दो मकामात ऐसे हैं जहां पे अल्लाह ने अपने हबीब को तहदीद की है। खबरदार मुशरिक से कभी रुकनियत न रखना। अगर रखी, अगर कहीं कोई मुशरिक इधर उधर मंडलाता नजर आए, मैं बहुत कुछ कह गया हूँ। मुशरिक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुशरिक इसमें फाइल है। मौलवी तालिब इल्म इधर बच्चे बैठे हुए, ठीक है। मुशरिक इसमें फाइल है, इसमें फाइल में तीनों जमाने आ जाते हैं। नहीं समझा सकता। इसका मतलब यह हुआ मुशरिक वो है जो कभी पहले मुशरिक था, तीनों जमाने हैं। पहले मुशरिक रहा हो, अभी मुशरिक हो, या बाद में मुशरिक हो जाए, उनसे रुकनियत रखनी ही नहीं है। अब अगर कोई नबी के
आजू बाजू में नजर आ जाए, की कोशिश करो। अगर कोई मुशरिक माजी वाला ही सही, मुस्तकबिल वाला ही सही, लेकिन अगर आजू बाजू में नजर आए तो शक न करना कि नबी ने उससे रुकनियत की है। जो है या नहीं है? अगर ऐसा माना तो कुरान की आयत गले में पड़ जाएगी। जो है ना मेरे दोस्त, तो अल्लाह ने दो मकामात पर नबी को तहदीद फरमाई, एक ये और दूसरा ये कि जब अल्लाह का नबी आखिरी हज करके वापस आ रहा था गदीर, मैंने अपने किताब में लिखी है सारी तफसीलात, आखिरी हज करके वापस आए, जब गदीर के नजदीक पहुंचे तब अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, आज करनी है तबलीग। अब हम मौलवी के लोग आए होते हैं, फजाइली है या तबलीगी है? अच्छा, हमारे यहाँ मेयार, ठीक है ना, मेयार बनाए हैं हम लोगों ने, मिंबर पर आने वालों के मेयार। और वो मेयार क्या है? जो नमाज रोजे की बात करे उसको कहते हैं वो तबलीगी है। है ना? और जो फजाइल पर, हाँ ये फजाइल, तुम्हें पता ही नहीं है कुरान तबलीग ही विलायत को कहता है। कुरान ने तबलीग नाम ही विलायत का रखा है, और जो पूरे कुरान में नबी के लिए एक ही मकाम पर अल्लाह ने कहा है तबलीग, और वो है ऐलान विलायत अली। मैं असबाब और इल्लत बयान करूंगा, पता तो चले कि आखिर वो असबाब क्या थे कि दुनिया ने गदीर को भुलाया। हाँ, वो असबाब क्या थे, वो इल्लतें क्या थी? हम लोग सिर्फ अली की विलायत को देख रहे हैं। ये ऐलान जो गदीर में हुआ था, ये ऐलान कोई आम ऐलान नहीं है। गदीर एक इंतजाम मुकम्मल है, गदीर एक एहतमाम मुसलसल है, गदीर तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत तौहीद है, गदीर तहफ़्फ़ुज़ नबुव्वत है, गदीर इख्तिताम दौरे नबुव्वत है, गदीर आगाज़ दौरे इमामत है। घबरा गए हैं आप लोग? गदीर कोई आम चीज नहीं है। गदीर में फकत अली की विलायत का ऐलान नहीं है, महदी की हुकूमत का भी ऐलान है। सुभान अल्लाह, तसलसल है पूरा। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक फमा बल्लग़त रिसालतह, और अगर तुमने इल्लम तफ़अल, अगर तुमने आज ये तबलीग न की, यानी कि दड़को छे बुआ ना, हाय जे न थो अच्छी, तो ये तहदीद है, ये डांट है मेरे हबीब। इल्लम तफ़अल, अगर तुमने ये तबलीग न की, फमा बल्लग़त रिसालतहु, तो न हज पहुंचाया न नमाज पहुंचाया, फिर तुमने कुछ नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं पहुंचाया। तवज्जो है मेरे दोस्तों? फिर तुमने कुछ नहीं पहुंचाया। हमें क्या पता, हमने थोड़ा ही ना देखा था, जिन्होंने देखा था वो, जिन्होंने देखा था उनको तो पता था ना, लेकिन मुकर क्यों गए? न मुकर, जो उनको मानते हैं वो मुकर जाते हैं, जो वहां थे वो तो बखन बखन कर रहे थे, वो तो मुबारकें दे रहे थे। ठीक है, इन्हें के चाचा बताओ देख खा चमचो गरम। हाँ, जो वहां थे वो मुबारकें दे रहे थे, जो यहाँ हैं वो मानते नहीं हैं। कमाल है, एक को पकड़ के किसी ने कहा था, किसी आलिम ने, किसी खतीब ने पकड़ के कहा था, अली की विलायत को नहीं मानते क्यों? कहा हमें क्या पता। कहा कैसे? कहा हमने थोड़ी ना देखा था। तो जवाब ये आया, तुमने खुदा देखा है? कहा नहीं। मानते हो? कहा क्यों मानते हो? कहा हमें नबी ने बताया। अल्लाह को मानते हो? कहा नहीं। कैसे नहीं मानेंगे? क्यों मानते हो? कभी देखा? कहा नहीं देखा। किसने कहा? कहा नबी ने कहा। तो नबी ने कहा मानते हैं। जन्नत मानते हो? है? कहा है।
तुमने देखी है? कहा नहीं। क्यों मानते हो? कहा नबी ने कहा इसलिए मानते हैं। जहन्नम देखा, फरिश्ते देखे, अल्लाह देखे? कहा नहीं देखे। मानते क्यों हो? कहा नबी ने कहा। कमाल है, जो दिखता नहीं है नबी के कहने पर मान गए, जो नबी ने उठा उठा कर दिखाया उसको मानते ही नहीं। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। अल्लाह ने नबी को ताकीद की, इल्लम तफअल फमा, यानी अहमियत का अंदाजा रखें। नबी की सारी बातें एक तरफ, अली की अकेली विलायत एक तरफ। समझ में आ रही मेरे दोस्तों बात? अजीब है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इस निजाम विलायत को रख। इस्लाम जमहूरियत का मुखालिफ नहीं है। मैं सियासत में नहीं पढ़ रहा, लेकिन दीन सियासत से दूर भी नहीं है। हमारी सियासत हमारी विलायत पर चलती है। मेरा अमीर फरमाता है अना कुतुबन मिन अर्रिहा, ये जो पूरी दुनिया चलती है वो एक चक्की की तरह है। उस चक्की के बीच में एक रोहा होता, कुतुब कहलाते हैं, उसे कुतुब कहते हैं। कुतुब उस लकड़ी को कहते हैं, जंड जो होता है ना, जंड, ये जंड फिर दो तरह है जने यो कुतुब हो जे ऐसा जे फअना कुतुबुम मिन अर्रुहा, कायनात चलती है, मैं अली उसका कुतुब हूं, ये ना हो तो चलेगी भी नहीं। जो बलागा पढ़ी है मैंने, सारा निजाम उस चीज पर चल रहा है। किस चीज पर? विलायत पर। अगर विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन वहां जहां इन्होंने कही है, नहीं समझे मेरी बात, वहां मानो जहां इन्होंने कही है। और कीजिएगा, ये सिलसिला इस अंदाज से आगे चला। अल्लाह के नबी को ये वादा करना पड़ा। क्यों? इसलिए कि अभी तक नमाज पहुंचाई। देखिए मसला क्या है, अल्लाह का फरमा रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग, तुम तबलीग करो। आयत जो मैंने इब्तिदा में पढ़ी है, इसमें परवरदिगार आलम ने कहा है कि ये गदीर तक दीन कामिल नहीं था, इस्लाम से मैं राजी नहीं था। होता क्या है, अगर हमारा बेटा कामयाब होकर डिग्री लेकर जब आता है तो कहते हैं हाँ अज तो उनके खुश करे चले। हाँ बाबा, इतने दिन किस्सा चल रहा था लेकिन राजी नहीं था। राजी तब हुआ जब सर्टिफिकेट लेकर आया। जो है मेरे दोस्तों, तो विलायत है दीन का सर्टिफिकेट। नमाज हो विलायत नहीं तो बेकार, हज है विलायत नहीं तो बेकार, रोजा है विलायत नहीं तो बेकार। जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक वो कामिल ही नहीं है। इसलिए परवरदिगार आलम ने कहा, यार मुझे समझ में बात नहीं आती। खुदा कहता है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उश्र, जो भी मानते जाओ कि ये दीन है, तुमने बनाया या मैंने बनाया। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? ये दीन है लेकिन कामिल नहीं है। ये दीन है लेकिन कामिल नहीं है। या अल्लाह नमाज हाँ दीन है लेकिन कामिल नहीं है, रोजा दीन है लेकिन कामिल नहीं है, हज दीन है लेकिन कामिल नहीं है। कामिल कब हुआ? जब विलायत आई, अल्लाह को कहना पड़ा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन कामिल हुआ। यानी कमाल है। अब पता चला हिदायत खाकर माथा पढ़ो, भाई कुरान से पूछो। जब तक अली दीन में ना आए तो दीन कामिल नहीं है, कलमे में ना आएगा तो कलमा कैसे कामिल? अल्लाह का नबी
मैं आ रहा हूं, जश्न का माहौल बनाए, माहौल जश्न का होना चाहिए। अल्लाह का नबी पहुंचा है गदीर में। गदीर है क्या? गदीर कहते हैं एक बहुत बड़े गड्ढे को, जो किसी मैदान में गड्ढा बना दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जहां पट्टे लगे हुए होते हैं ना, हाँ, तो पठान जमीन उखाया पट्टे लगाते हैं तो वो जमीन खरीदते हैं, फिर होता क्या है कि उसकी मट्टी निकाल कर उससे ईंटें बनाते हैं, तो वो ऐसा बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है। गदीर अरबी का लफ्ज है, ग्राउंड अंग्रेजी का लफ्ज है। फिर होता क्या है, दिन में पठान ईंटें बनाता है, शाम को गोरचानी क्रिकेट खेलते हैं, है ना। कहने का मकसद ये है कि गदीर कहते हैं जो ऐसे गड्ढा बन जाता है। ठीक है, गदीर वैसे तो जो हम कशकोल और उसको लेके चलते हैं, जिसे कशकोल कहते हैं, जो फकीरों के पास होता है ना, वो भी आप नोट करेंगे, वो भी ऐसे ही प्याले की तरह है। ठीक है, गदीर ही में क्यों? नबी सीधे चटियन मैदान पर ऐलान विलायत अली कर सकता था, लेकिन नबी ने वहां नहीं किया। ये गदीर में क्यों लेके आया? थोड़ा तवज्जो करें, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। गदीर ही में क्यों लेके आया? का इसलिए कि गदीर प्याले की तरह बना हुआ है। स्टेडियम आपने देखा होगा, क्रिकेट चलते हैं ना, स्टेडियम ऐसे गोल बनाते हैं ताकि तमाशाई चारों तरफ बैठ सके और देख सके। कल कोई ये न कहे मुझे नजर नहीं आया, छक्का कब लगा। मेरी बात कोई ये न कह सके कि मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, इसलिए स्टेडियम को इस तरीके से बनाया जाता है कि सबकी नजर पड़े। नबी होशियार हो या नहीं? हाँ, ऐसी जगह पर उनको लेके आके जमा किया। अच्छा, चलो दिखने की तो बात अपनी जगह पर, ऐसी जगह पर नबी लेके आया कि दिखाई दे, लेकिन नबी ने कहा क्या? ये तो कोई ये नहीं कह सकता कि नबी ने जो कहा वो मैंने सुना। कोई ये भी कह सकता है कि मैंने तो सही सुना है, अरे सही सी बोड़ा आयु साकों बुधो। ठीक है, हमने नहीं सुना। तो इसलिए नबी ने अली की विलायत से पहले तौहीद का ऐलान किया। अलैहिस्सलाहु रब्बुकुम, क्या अल्लाह तुम्हारा रब है? सारी स्टेडियम गदीर वाली ने कहा, कालू बला, हाओ सही हाओ, बिल्कुल है। फिर कहा, अलस्तो औलादिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारा मौला हूं या नहीं हूं? सबने कहा। नबी ने 3 मर्तबा दोहराया शरीयत के। ये 3 मर्तबा क्यों दोहराया? ताकि कल जो अब जुमला कहूंगा, कल कोई ये न कहे कि हमने सुना नहीं था। नबी पहरी पक्का पे उठे। पहले तौहीद का ऐलान किया, हाँ से मानते हैं। फिर नबूवत का ऐलान किया, कहा अब भी मानते हैं। फिर जब कहा अगर मुझे मानते हो कि मौला हूं और जानते हो कि मौला हूं, फमन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। रुके मैं यहां पर, फिर 2-4 आयतें पढ़ना चाह, घबरा तो नहीं गए? अजीब आयतें हैं। देखें, परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के फजाइल में क्या इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन। बात करें, आपने नहीं आयत सुनी? फमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरा हबीब आलमीन के लिए रहमत बन के आया। ठीक है, इस मकाम पर अल्लाह ने अपने हबीब को क्या कहा? मेरा हबीब रहमत है। फिर दूसरे मकाम पर
پھر اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن، گھبرا کر نہ سنیے گا، ہاں جشن میں بیٹھے ہیں نا، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا جشن ہے، میرا 8واں امام میرا مرشد رضا جس کا میں جاروب کشوں، میرا وہ امام فرماتا ہے غدیر وہ عید ہے جو زمین سے زیادہ آسمان پر منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جو ہے میرا دوستو، عجیب بات ہے، حضور نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، نبی ہے کون؟ قرآن نے کہا میرا حبیب رحمت ہے۔ پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا فَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، آپس میں فرقہ واریت نہ کرنا، اور میرے اس نعمت رسول کو یاد رکھنا۔ نہیں سمجھا سکا، میرے اس نعمت رسول کو یاد رکھنا۔ اس کو تم اعداء، جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے اس نعمت رسول نے تم سب کے دلوں میں الفتیں بھر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میرے اس نعمت رسول کے صدقے میں تم لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ کس کے صدقے میں؟ نعمت رسول کے صدقے میں۔ کمال ہے، پہلے کہا میرا حبیب رحمت ہے، اب کہتا ہے میرا حبیب نعمت ہے۔ ہاں ہے کوئی جو یہ کہے بابا کے رہی سید ادکلا کھاپو ابا دے خبر ذات ہو کے رہے منگ رہے ہو، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ہی وقت میں 2 متضاد صفتوں سے متصف ہو؟ ہاں رحمت اسے کہتے ہیں کہ ما لا یسأل عنہا، رحمت اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ بچیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ رحمت الہی ہے، بچیوں کے سلسلے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن بیٹے نعمت ہے۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ ما یسأل بہا، نعمت اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت بھی ہے، نبی نعمت بھی ہے۔ اگر آج من کنت مولا فہذا علی المولا نہ سمجھ جا سکا تو پھر شاید میں کبھی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا نبی رحمت بھی ہے، نبی نعمت بھی ہے، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ 2 متضاد چیزیں ایک ہی ذات میں شامل ہو جائیں۔ رحمت سوال نہیں ہوگا، نعمت سوال ہوگا۔ تو یہاں پر علماء نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کردار مصطفیٰ کو۔ نبی کی ذات کے 2 چیزیں ہیں، یا قول ہے یا فعل ہے۔ نبی کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں، یا قول نبی یا فعل نبی۔ تو ایک نے کہا قول رحمت ہے، فعل نعمت ہے۔ یار جاگنا، قول رحمت ہے اور قول کا آپ سے کوئی بھی سوال نہیں ہوگا، فعل نعمت ہے اس کا سوال ہوگا۔ نہیں سمجھا سکا میرے دوستوں، نہیں سمجھا سکا۔ نبی کا قول رحمت ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، فعل نعمت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو کسی نے کہا نہیں، الٹا ہے، نبی کا قول نعمت ہے، جو کہا اس کے بارے میں سوال ہوگا، فعل نبی کا رحمت ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو یہی سبب تھا، یہی سبب تھا۔ توجہ کریں، صلوات پڑھیں محمد